of all, thank you for first of all, ma'am, thank you for giving us your valuable time. अभी सारे मेरे registered students हैं, तो I just want कि आप थोड़ा सा इनको brief कर देती हैं about essay because you have been my mentor और मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है, be it my CSS exam और PMS exam, essay के लिए सिर्फ आपसे जो है वो guidance ली है. So I just want कि आप थोड़ा सा अगर इनको brief कर दें कि do's and don'ts क्या हैं and then what they need to do to pass exam, क्योंकि अभी जो recent exam result आए हैं CSS के भी और PMS के भी, तो most of the students they have been asking about essay. So I thought no one but only you जो आप इनके answers कर सकते हैं. Ma'am, it's all your now. You can start. Thank you so much, Usman, for arranging the session. और आप लोगों का definitely hard work भी था. That is why you people are sitting here on these posts. And beginning with essay, the first thing is that के essay के अंदर जो पिछले 2-3 सालों में मैं देख रही हूँ वो trend को लेके बच्चे upset हो रहे हैं कि जो trend था वैसा essay नहीं आया, pattern वैसा नहीं था, statements change थे, literary सारे आ गए, सभी problematic आ गए, सभी out of the box कुछ ऐसे essays आ गए. So what I am already teaching and had been teaching is that you need to develop the skill and not that just the theme और कोई topic select कर लें कि 3 women कैसे हमने prepare कर लिए, 3 problematic कर लिए हैं, literary को हम option में भी छोड़ देंगे. Never ever that. Like all the previous students, even जिसकी जो भी command थी, get familiar with every single aspect, every single essay type. कि हर एक type में क्या क्या credentials हैं, क्या important चीजें हैं. और कुछ ऐसी आउटलाइन है जो अगेन एफपीएससी इज द सोर्स जहां से हमें वो आउटलाइन की एक सिर्फ आप कह लेंगे हमें बुलेट्स मिल जाएंगे कि क्या चीजें आउटलाइन में इंक्लूड करना आर एसेंशियल. सो एक अगर मैं उसका रफ इफ आई कैन शेयर, उस्मान, एम आई एबल टू शेयर? जी मैम, आप कर सकती हैं स्क्रीन शेयर. Okay, fine. So there I am sharing my screen with you people. I want to show you a few things. जैसे अगर हम essentials of essay पे बात करें तो there we have a few essentials of essay. If it is shared on the screen, अच्छी outline अगर करनी है पहले इसको chunks में divide करें. अब ये points मैंने कहाँ से लिए हैं? Again from FPSC website पे जो हमारी examiner report आती है, उस report में से कुछ चीजें मैंने उठाई हैं outline के लिए कि जैसे it should be comprehensive. It should always be to the point, clear and concise. There shouldn't be any repetition. It should be inclusive of facts, refers to authentic data, references and quotations. अब कुछ students जो previous year में मैंने देखा, last year बहुत से students कह रहे थे कि मैम आप data include कराती हैं, अब real life कहती हैं examples add करें, तो हमें 1-2 teachers ने कहा है कि वो report बन जाती है. Writing style in report and essay differs a lot. तो आपने रिपोर्ट और उसके चीजों को अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना. बट एग्जामिनर रिपोर्ट से सो अगर आप लास्ट रिपोर्ट देख रहे हैं या जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी एक है वो भी बड़ी अच्छी पड़ी हुई है एफपीएससी वेबसाइट पे कि उसके ऊपर पिछले 4-5 साल के अलग अलग एग्जामिनर के उन्होंने रिपोर्ट को कंसाइज करके और कंसोलिडेट करके रखा हुआ है. Again, then it says it should be subjective and analytical. That is specifically for CSS aspirants, that their subjective approach towards the statement of the essay should be there. However, in PMS it differs. इसी तरह अभी चाहे आप स्पेशल एग्जाम में जा रहे हो या आपने फरवरी में एग्जाम देना हो, either case you just need to ensure कि ये सारा क्राइटेरिया, ये चेकलिस्ट आप मीट कर रहे हैं. There should be logical reasoning. It should include multiple dimensions, perspectives, stratas. Again, now ये सारा जो ये प्रैक्टिस से आता है. और डिफरेंट टेक्निक्स जो हम आउटलाइनिंग की टेक्निक्स करते हैं, 7-8 टेक्निक्स हैं, 10 टेक्निक्स. फिर हम पैराग्राफिंग के डिफरेंट स्टाइल्स देखते हैं, पैराग्राफ में इंटरेस्ट कैसे आता है, वैरायटी कैसे ऐड हो सकती है, रेफरेंसेस को कहाँ कोट करना है, डेटा को कहाँ इंसर्ट करना है अपने पैराग्राफ में, कैसे उसकी वेटेज इंक्रीज करनी है, ऑथेंटिक कैसे बनाना है. दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट. एंड देन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सीएसएस में ऐसे आ रहा है जर्नली इकोनॉमिक सिचुएशन पे और पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है, एंड पे हम एक पैराग्राफ पाकिस्तान सेंटर्ड दे सकते हैं एज वी हैव आवर एम्पिरिकल एविडेंस विद पाकिस्तान. और अदरवाइज अगर हम देखें, अगर आया है इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान है, फिर तो ऑल ऐसे शुड बी पाकिस्तान सेंटर्ड. तो ये सारा, इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक द पिक्चर, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ड्यूरिंग लेक्चर पॉइंट्स लिखे थे, तो विदाउट हिज परमिशन आई एम शेयरिंग हियर. तो लेक्चर से ही ये उसने निकाला हुआ और वो लेक्चर मेरा एफपीएससी रिपोर्ट से था. सो दिस इज हाईली रिलायबल. यू कैन गो फॉर दिस for any, like either it is a special or this.
ऐसे में आउटलाइन आपने जब भी करनी है, दिस पैटर्न इज ऑल एनकम्पसिंग, ये आपके लिए एक सेफ हेवन होगा। इसी तरह मैं 2 आउटलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड ही इज विद अस इन द एवेलुएशन ग्रुप्स। एक ग्रुप इस वक्त एवेलुएशन वालों का है, एक मेरे पुराने स्टूडेंट्स के साथ है, और एक अभी रिसेंट नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है जो भी रिसर्च सिर्फ कर रहे हैं टॉपिक्स पे। This is somebody who has done his classes and session with somebody else. I don't know the teacher exactly, but हम एक कंपैरिजन बिल्ड करेंगे। मुझे लगा कि इतना पढ़ने के बाद, सेशन लेने के बाद भी, जैसे हम भी हों स्टूडेंट, तो हम एवेल्युएशन के लिए 2-3 टीचर्स के पास जाते हैं जस्ट टू गेट फेमिलियर क्या पैटर्न है। हर टीचर कोई अलग से टिप दे रहा होता है, और कई दफा वो सारी टिप्स हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल हो जाती हैं अगर उनको इकट्ठा मिलाएं हम। अब इस ऐसे में देखें, द स्टेटमेंट सेज फॉर एज लॉन्ग एज आवर पीपल आर हेल्ड होस्टेज बाय अनकंट्रोलेबल सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस, we cannot afford to be indifferent to the ravages of poverty in all its dimensions and ramifications। पहले तो मुझे राइटिंग पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आ रही है यहाँ। फिर इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसने delineating the uncontrollable socio-economic forces, income and wealth distribution। एक ऐसा एडजेक्टिव होता, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एडजेक्टिव, मे बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वो कहना चाह रहा है उसके एडजेक्टिव से पता चलना चाहिए था। एक्सेस टू एजुकेशन, व्हाट? डिलेड एक्सेस, डिनाइड एक्सेस, फॉल्टी एक्सेस, अनजस्टिफाइड, किस तरह की एक एडजेक्टिव आ जाता जो क्लैरिटी देता। ये मुझे इस पहले हिस्से में मसला लगा। इसी तरह रैमिफिकेशंस ऑफ पॉवर्टी, सोशल, सोशल व्हाट? सोशल रैमिफिकेशंस, सोशल जो भी चीज आगे बताना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली क्लैरिटी यहाँ पे मिसिंग है। अभी जैसे हमने कहा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। सो इफ यू पीपल जस्ट स्क्रॉल दिस, देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, मींस टू मिटिगेट पॉवर्टी एंड कंक्लूजन। कोई एक रीजन अगर आप लोग इसमें देख सकें कि व्हाई शुड दिस एसे बी नॉमिनेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट वंस, या ये स्टूडेंट, ये लिखने वाला राइटर टू दिस एसे, क्यों वो ऑफिसर होना चाहिए? आई कुडंट फाइंड एनी वन बिग गुड रीजन फॉर दिस कि ये एसे, ये आउटलाइन एक ऑफिसर की होगी। डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट कोई नहीं था, कोई एलिमेंट ऑफ डिफरेंस नहीं था, जो मैं इतना 10 साल से कह रही हूँ कि डिफरेंस क्रिएट करें अपनी राइटिंग में, इंप्रेसिव बनाएं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दें, सब्जेक्टिव नॉलेज लाएं, अपनी अप्रोच क्लैरिफाई करें। वो सब यहाँ पे मिसिंग है। मुझे ये वाली बहुत मोनोटोनस लगी कंपैरेटिवली। अगर मैं अब एक और आउटलाइन आपको दिखाऊं, है वी गो विद दिस वन। दिस इज अगेन टॉपिक बड़ा बोरिंग सा है, फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान, कॉजेज, इंपैक्ट्स एंड रेमेडीज, वे फॉरवर्ड। इतना वो घिसा पिटा काइंड ऑफ टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया उसने इसमें बहुत जान डाल दी। अब इसने यहाँ पे पहले ही इंट्रोडक्शन में अपना स्टांस क्लियर किया, again with factual information, flash floods have wreaked havoc, see the negative adjectives here, this student has qualified written exam this year alhamdulillah। और इसके अगर मैं आपको 20 एसएस भी दिखाऊं, 20 के 20 में क्वालिटी नजर आएगी। पहले ही आप देखें एडजेक्टिव्स नजर आ रहे हैं, अप्रोप्रिएट जार्गन नजर आ रहा है, टर्मिनोलॉजी सूटेबल है, डिस्प्लेसिंग 33 मिलियन पीपल, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, destroying massive infrastructure and devastating large number of crops and livestock, highly comprehensive sentence। The major culprits of flash floods were drastic climate change and bad governance and management in Pakistan। However, the dire need of today is to ensure rapid reconstruction and rehabilitation of the flood affectees। तीनों aspects यहाँ पे address हुए, cause, impact, best remedy। तो start में ही stance of the student has been clarified। Then causes of flash floods, increasing global warming। Look at the adjective here again। असर्च भी हो सकता था कुछ भी, बट इंक्रीजिंग इज आल्सो फाइन, एक सिंपल वर्ड है बट आइडिया क्लैरिफाई हो रहा है। केस इन पॉइंट इज गिवन विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, पाकिस्तान इज 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। Similarly, in B part, increased torrential rainfalls. Again, see torrential, a very suitable adjective for rainfall. Unstoppable rainfall. Rainfalls due to rapid temperature. And again, the case in points are given here. According to Pakistan Climate Change Council, reference authentic है, relatable है। Similarly, you can see in the rest of the points as well कि वहां पे कहीं पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं पे डेटा गिवन है, कहीं पे रेफरेंस बिल्ड किया हुआ, कहीं केस इन पॉइंट है, कोई केस स्टडी आ रही है। इम्पैक्ट्स में इसी तरह देखें, पाकिस्तान सफर्ड ह्यूज लाइफ लॉसेस। अब ये बड़ी जेनेरिक सी बात होती है अगर सिर्फ लिखा था लाइफ लॉसेस हुए, बट ये केस इन पॉइंट बताना कि एनडीएमए की रिपोर्ट ने बताया कि 1208 पीपल डाइड ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स बिटवीन 14th जून टू 1st सितंबर। हाईली रेलेवेंट एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा। ऑथेंटिकेशन हमें कैसे पता चली? एनडीएमए की रिपोर्ट है।
So see the difference in both the outlines. This is how we can bring a difference in our outlines. Even if a layman look at these two outlines, तो एक बड़ा clear difference पता चल रहा है कि इनमें क्या क्या हम difference create कर सकते हैं. और फिर getting back to our essentials of good outline, so we'll see that it is comprehensive again, to the point भी थी, clarity किसमें थी और किसमें नहीं थी, repetition avoid हो, inclusion of facts हो, references, authentic data, quotations, subjective aspect, logical reasoning, multiple dimensions of Pakistan perspective added हो. तो सारे essentials of good outline have it over there. So this was all कि ऐसे जब भी लिखें उसके अंदर आउटलाइन से लेके अपने कंक्लूजन तक उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी ना छोड़ें, कॉम्प्रिहेंसिव हो, रेफरेंसेस बिल्ड हो, डेटा इंक्लूसिव हो, सब्जेक्टिव अप्रोच ऐड करें एंड मेक इट डिफरेंट. उस सारे लॉट में से योर पेपर शुड स्टैंड आउट, इट शुड क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस ओवर देयर. ठीक है जी. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय पार्ट. दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू कि स्पेशल एग्जाम हो या सीएसएस हो या पीएम कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, ब्रिंग डिफरेंस इन योर राइटिंग, give some quality input to that, and definitely there will be some output, inshallah. If there is any question from your side, I'm here to address that. थैंक यू मैम फॉर द ब्रीफ लेक्चर. कुछ क्वेश्चन जो मेरे से इतने दफा पूछ चुके हैं तो मुझे तो क्वेश्चन जुबानी याद हो चुके हैं. लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन अगर इफ यू अलाउ मी, तो मैं यही Sure, इनके sure. क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ. सेकंड, आई जस्ट वांट टू मेक अ कमेंट कि अभी भी मैं अगर मैडम को मैं कुछ चेक करवाऊंगा तो मुझे भी बहुत डर लग रहा होगा कि मैडम इतनी गलतियां निकालती हैं. तो लेकिन यही है कि गलतियों से ही आप लोग सीखते हैं. अच्छा मैम, सबसे पहले इनका एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है जैसे आपने भी मेंशन किया कि ये थीम्स तैयार करते रहते हैं. तो लास्ट ईयर की थीम्स तैयार कर रहे थे, तो क्या इनका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि इनको अगर इन्होंने प्रैक्टिस करनी है लेट्स से सीएसएस 2024 की खुद से या जिधर भी मर्जी सोर्स से चले जाएं, तो इनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? किस तरह ये ऐसे चूज करें और डेली प्रैक्टिस करें? अच्छा, ऐसे वो चूज करना चाहिए जिससे आप फेमिलियर हो, जिसकी बेस के साथ आपकी अपनी आइडियोलॉजी रेजोनेट करती हो, जिसके ऊपर आपके पास कोई ऑथेंटिक डेटा हो. You should have clarity on that. जैसे previous years में एक दफा आया look to the east for the holistic progress. अब वो होलिस्टिक प्रोग्रेस में पूरी एक थ्योरी थी चाइना रशिया वाली. अब होलिस्टिक प्रोग्रेस को लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे इंटरप्रेट किया. दे वर नॉट फेमिलियर विद द टर्म. कोई एलियन टर्म आ जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं उसके साथ फिडल करना चाहिए. लेट इट गो, और वो करें जिस पे कमांड है. सेकेंडली, थीम आपने जो भी प्रिपेयर की है, मुझे लगता है थीम से ज्यादा स्किल आपके पास होना चाहिए. स्किल कैसे कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट आता है, जैसे मेरे अपने बैचमेट्स जो मेरे अपने कोलीग्स उस टाइम पे थे, हम लोग इस तरह प्रिपेयर करते थे कि हम एक दूसरे को कहते थे जस्ट हिट अ टॉपिक, हर लेट एंड आई स्टार्ट सेइंग समथिंग ऑन इट. और उसके ऊपर, और जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स करते हैं सभी क्लासेस में अभी तक हम करते हैं कि कैसे कैसे हमें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए टू मेक आवर आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव. डेटा किन किन पॉइंट्स पे इनकलकेट करना चाहिए, कहाँ पे रेफरेंस देना और कहाँ पर नहीं देना. फिर डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज कैसे हो, कहाँ जनरल टू स्पेसिफिक रहना और कहाँ स्पेसिफिक पे ही स्टिक रहना है. ये स्किल जब डेवलप हो जाता है तो ऐसे कोई भी हो, यू आर सो केपेबल ऑफ मेकिंग इट इम्प्रेसिव बना लेते हैं उसको. एक आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं रीडर के माइंड के ऊपर. मैम इसमें अगर समराइज करें तो जो आप प्रैक्टिस हमें करवाती थी वो यही करती थी कि आपको रैंडम टॉपिक दे देती थी एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर दैट टॉपिक आवरसेल्फ, और उस पर फिर आप जो है वो चेक करती थी. तो सजेशन इनके लिए यानी यही आप दे रही हैं कि कोई भी टॉपिक ये लें पास पेपर्स में से और उसको थोरोली प्रिपेयर करते जाएं, कोई डोमेन बिल्कुल. से ना करें. ठीक है मैम. एवेल्युएशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. जी अगर मैम. प्रिपेयर कर लिया और लिखा तो उसको प्रिपेयर करने के बाद, लिखने के बाद चेक भी करवाएं. जी, वैल्यूएशन करवाएं. तो वैल्यूएशन के लिए मैम यू आर आल्सो ऑफरिंग वैल्यूएशन एट द एंड, मैं सबके साथ भी शेयर कर दूंगा. लेकिन मैम एक इंट्रोडक्शन जो है वो आप बड़ा फोकस करती थी. मुझे याद है कि मैं जब आता था, आई रिमेम्बर के 2018 में फेब को पेपर थे, आई थिंक 12 फेब को में भी, तो 10 फेब को मैं आया तो आपने क्रॉस लगा दिया, आपने कहा इतना लेंथी सेंटेंसेस हैं. तो इंट्रोडक्शन आपने काफी एफर्ट करवाते थे इंट्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट में. तो क्या इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको किस तरह लिखा जाए कि ये और इंक्लूसिव भी हो और इसमें लिटरेरी टेस्ट भी आए? लिटरेरी टेस्ट आप हर एसे में प्रोड्यूस करते हैं, मेड बी पोलिट. जैसे मैंने अपने एसेज, अपनी अटेम्प्ट वाले एसेज आप लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं. हर ऐसे लिटरेरी टच ले सकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स पे है, इकोनॉमी पे है,
या वो आपका कोई जेनेरिक एस्पेक्ट है, लिटरेचर इज ऑल अबाउट लाइफ, वहां से आप इनकलकेट कर सकते हैं। ऑल्दो हम एग्जांपल्स एंड डॉट्स उस तरह बहुत लेंथी नहीं लिखते, बट यस जो आपने पॉइंट किया क्या वेटेज है, पहले तो ये कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फेट डिटर्मिनर्स हैं। अगर यहाँ आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लिया तो 40 आ जाते हैं, बाकी सारे फिर प्लसेस हैं आपके। ये 3 बड़े डेट्रीमेंटल फैक्टर हैं आपके। और इंट्रोडक्शन में शॉर्ट सेंटेंसेस में क्यों कहती हूँ, लॉन्ग में कई दफा हम रन ऑन्स की तरफ चले जाते हैं। रन ऑन्स आर दोज चंक्स जिसके अंदर जहां फुल स्टॉप इज नीडेड, अ पीरियड शुड बी एडेड देयर, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हुए देयरफॉर 10 और कोई कनेक्टर कंजंक्शन लगाकर उस जुमले को बिला वजह लंबा करते जाते हैं। तो ऐसे जुमले नहीं होने चाहिए। और की टू दिस इज के शॉर्टर सेंटेंसेस की तरफ जाएं। द शॉर्टर इट इज द क्लियरर इट इज। एडजेक्टिव्स का यूजेज ज्यादा हो, सिमिलीज, मेटाफर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूजेज हो, क्लैरिटी उससे आ जाती है, बट बहुत ज्यादा लंबा जुमला नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो मैम इसमें अब एक और लास्ट चीज मैं पूछूंगा कि टाइप ऑफ पैराग्राफ, स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइप ऑफ ऐसे की बात कर रहे होते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है। मेरे ख्याल में तो ये तो टाइप ऑफ पैराग्राफ हैं, तो आप इसमें आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा उस्मान, अगर पूरा ऐसे मैं एक्सपोजिटरी लिखूंगी ना, वो एक स्टोरी काइंड ऑफ हो जाएगा। या मैं डिस्क्रिप्टिव लिखूं या नैरेटिव लिखूं, वो फिक्शन राइटिंग के जैसे जॉनरास है ना, वो उसमें चला जाता है। हमारा एग्जामिनर हमें अलाउ कर रहा है कि इट कैन बी अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, लिटरेरी, तो हम क्यों ना ब्लेंड को फिर करें, ब्लेंड इंट्रोड्यूस करें उसके अंदर। उससे फायदा क्या होगा, आपके ऐसे में एक वैरायटी और इंटरेस्ट रहेगा, मोनोटनी नहीं होगी कि सारे ऐसे एक सर्टेन पैटर्न की बिगिनिंग ले रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस एक जैसे हैं, डेवलपमेंट आइडियाज एक जैसे हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज सेम। सो इट शुडंट बी दैट वे। ऐसे हो कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक में मैंने एक्सपोजिशन दी है, एक के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, एक में मैं लिटरेचर ऐड कर दूं, तो एक वैरायटी ऑफ पैराग्राफ जब आ जाएगी तो इंटरेस्ट रीडर का भी उसके अंदर ग्रास्प होता है। जी मैम, मैम ये वो ऐसे हैं जो मैंने आपसे तैयार किए थे, इनका सबको मैंने बनाया हुआ है, तो ये इनके साथ भी मैंने शेयर किए हुए हैं, बार 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 करता रहता हूँ। तो मैंने यही दोनों तैयार किए थे, बाद में भी अब जिसको भी देता हूँ वो यही तैयार कर ले, तो आई थिंक वो काफ़ी हो जाएगा। तो आई थिंक अब कुछ एक दो के जेनेरिक अगर क्वेश्चंस हैं, इफ यू हैव टाइम, तो कैन आई टेक दोज क्वेश्चंस और शैल आई जी कॉल इट? श्योर, नहीं यू कैन टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू। जी, किसी के क्वेश्चंस हैं तो काइंडली रेज योर हैंड। यहाँ पे चैट में उस्मान, आई कैन, सॉरी आई एम कटिंग यू, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, हाउ टू डेवलप स्किल्स इन लिटरेरी एसे। लिटरेरी एसे के अंदर आपने रियल लाइफ से सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। आप अपने इर्द गिर्द जहां जहां उस एस्पेक्ट को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक आउट द टॉपिक, हमारी कल की क्लास है स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर देयर इज अ टॉपिक दैट कैन अगेन बी डन विद लिटरेचर, इफ आई कैन बी स्पेयर्ड फॉर अ लिटिल व्हाइल। Yes, the topic states the first lesson of economics is scarcity, and the first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics. अब यहाँ पे भी पहला लेसन स्कार्सिटी है। हम कहाँ कहाँ देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कह रही है। अगेन जो टेक्निक इनको भी मैं सिखाती थी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट के अंदर देखें रिसोर्सेज किधर किधर से हमें मिल रहे हैं, इवन एजुकेशनल रिसोर्सेज और सब। और पॉलिटिक्स इसके अगेंस्ट कैसे जाती है, वादे कर लेते हैं मगर पूरे नहीं कर पाते। अब रियल लाइफ से सारे एग्जांपल्स देते जाएंगे, वो लिटरेचर होगा हमारा। और स्किल यही है कि टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए, चाहे किसी टीचर से, चाहे आप खुद से अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर तो खुद से भी कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज मैम, डू यू टीच ऑनलाइन? राइट नाउ आई एम हैविंग ऑनलाइन लेसंस एज आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ वेरी फार ऑफ प्लेस, so I am preferring online classes and all my sessions thrice are online right now. Ma'am, how to deal with philosophical essay based on quotes? Philosophical essay is not less than the literary essay. It's more or less the same. Again, you have to give examples from the real life. A quote such as, I think, therefore I am. So what do you think about yourself? In what aspects do you think that? And therefore, what you are actually. So what, why, who, all this philosophy behind what are your characteristics, how you come to those characteristics, how you attain those, all those should be included in that. Then is, मैम जो कुछ लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन लाजमी एनेक्डोट, पोइट्री या कोटेशन से स्टार्ट हो, तो क्या ये जरूरी है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन सिंपल स्टार्ट करें? सी, व्हेन आई वाज एट लम्स डूइंग राइटिंग कोर्स, तो हमें हमारे एक इंस्ट्रक्टर ने, और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उससे पहले भी यूं ही कहती थी, हर एक का अपना अंदाज है। एसे इज व्हाट यू से, आई नेवर से कि सिर्फ एनेक्डोट ही लिखेंगे, या आपने इंटेरोगेटिव स्टार्ट ही देना थीसिस स्टेटमेंट में।
Interrogation is not necessary. It can be just one way of doing it. Anecdote and poetry is similarly one way of doing it. Quotation क्यों कहा जाता है? मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप quotation से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज quotation के वर्ड्स कई दफा बड़े इंप्रेसिव होते हैं, कई दफा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि वो पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्ट का बाइस होते हैं, और वो ऑल एनकम्पसिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स होते हैं quotations के. So that is why quotations are preferred. Then again, another question is, please let us know from which platform we can attend your classes. You can get my number from Usman, or we can just share by the end of the question answer session. From there, you can approach me. I'll share ma'am's contact in group. Okay. Thank you, Usman. Kindly guide about type of essay, how to identify the type of essay from the given topic, whether the given topic is pointing about expository or argumentative. For argumentative, this is my personal experience that a lot of candidates, a big percentage I have seen getting failure in argumentative because students are not capable of handling argumentation. अपने ही स्टैंस को, अगेन अगर मैं आप स्क्रीन शेयर करूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्टैंस को नेगेट कर दिया हुआ है, डेमोक्रेसी को अच्छा कहा और आगे जाके उसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर डेमोक्रेसी को ही बुरा कहा. आर्गुमेंट हैंडल ही नहीं स्टूडेंट कर पा रहा. जिनकी कमांड नहीं है, दे शुड नेवर गो फॉर आर्गुमेंटेटिव. और इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके अंदर हम ऑल्दो और येट से करते हैं. ऑल्दो दिस एंड दिस थिंग इज गुड अबाउट दिस सर्टेन एस्पेक्ट, येट दिस एंड दिस इज बैड. इसमें भी मैंने बहुत फेलियर देखा है इस टाइप की थीसिस स्टेटमेंट के अंदर. स्टूडेंट्स आर अनएबल टू हैंडल सच थिंग, सो आई प्रेफर दैट दिस शुड बी अवॉइडेड. एंड इट्स नॉट, देखें जैसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए. आपको उसका आर्ट सिर्फ आना चाहिए कहाँ पे यूज करने चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करना गलत हो जाएगा. ओके, देन इज, I guess I'm missing a few questions. Let me go back to that. Ma'am, facts या case study. If you guys can just stop typing for just a little while, मेरे questions skip होकर सबसे नीचे आ जाता है मेरे पास. Identification is, ma'am, facts या case study outline में भी add करनी चाहिए. Yes, you can. मैम मैंने, वालेकुम अस्सलाम, ऐसे राइटिंग जो प्रिपेयर की सारे मेंटोर्स उससे चेंज करवा रहे हैं, और एवेल्युएशन में भी सारे मेरी राइटिंग एक्सप्रेशन को गलत कह रहे हैं, स्पेशली इंट्रोडक्शन में. मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल अबाउट इंट्रोडक्शन. उनसे पूछें आप कि क्या इंट्रोडक्शन में गलती है, उस गलती को आइडेंटिफाई करें और एफपीएससी रिपोर्ट के क्राइटेरिया पे चेक करें कि क्या वो उसको मैच कर रहा है. अगर सारे गलत कह रहे हैं, डेफिनेटली देयर विल बी सम पॉइंट इन दैट. कोई रीजन होगा ना जो सब कह रहे हैं उसमें कोई इश्यू है. तो इंट्रोडक्शन पे काम, मेहनत करना बड़ा जरूरी है. इंट्रोडक्शन में आपके पूरे आइडिया, पूरा क्रक्स होना चाहिए एस्से का, क्लैरिटी होनी चाहिए आप किस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन आउटलाइन में लिखना था आपके मॉडल एस्से में, इंट्रोडक्शन आउटलाइन में लिखा था. नहीं, इट वाजंट इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ आउटलाइन में स्टेटमेंट लंबा हो गया था, उसने 3 पॉइंट्स लिख दिए थे. शुड बी नॉट राइट इंट्रोडक्शन इन मेन बॉडी. यस, इंट्रोडक्शन शुड बी इन द मेन बॉडी. थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखना या इंट्रो में ऐड इन स्टार्ट मिडिल और एंड, कोई इसका पेट रूल नहीं है कि स्टार्ट में लिखें या एंड पे लिखें. ये आपके राइटिंग स्टाइल पे जहां पे वो इंप्रेसिव लगे वहां पे लिखें. मैम प्लीज टेल द अबाउट द लेंथ ऑफ थीसिस स्टेटमेंट. इट कैन बी 2 to 3 लाइंस. अच्छा जी, फर्दर क्वेश्चंस. मैम क्या थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सेंटेंस होना चाहिए? हर टीचर डिफरेंट पैटर्न बता रहा है. इस जेंडर क्वालिटी या मिथ, ये कौन सा टाइप ऑफ एस्से या आर्गुमेंटेटिव? इस जेंडर क्वालिटी या मिथ, आपने सिंपल इसको एक्सपोजिशन पे भी कर सकते हैं और लिटरेरी भी ये किया जा सकता है, और इसका थीसिस स्टेटमेंट 2 से 3 लाइंस पे जा सकता है. टू मी लाइन इज फ्रॉम फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, बिगिनिंग टू फुल स्टॉप इज द लाइन. तो 2 से 3 लाइंस हो सकते हैं, और ये एक्सपोजिटरी हो सकता है बिल्कुल, और लिटरेरी भी हो सकता है. थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन में ऐड करना चाहिए. अगर आपकी कमांड है तो करें, वरना ये फेलियर की तरफ ले जाता है. एनी अदर क्वेश्चन? कुछ यहाँ पे टीचर्स, अभी लाहौर के कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने कहा स्टूडेंट्स को नहीं लिखवाना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट में. तो उनसे मेरा अग्रीमेंट इस तरह से है कि अगर स्टूडेंट को थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना आता और लिख देता है, तो बिल्कुल वो अपना बुरा इंप्रेशन दे देता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती. बट एक डिसएग्रीमेंट जो उन टीचर्स है जिनको लिखना आता है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं. मैम द बिगेस्ट फेयर व्हाइल राइटिंग ऐसे कंटेंट. फेयर इसलिए है कि कंटेंट गैदर नहीं किया. कंटेंट जब रिसर्च की होती है तो फिर फियर नहीं होता कंटेंट का. रिसर्च की कमी है ऐसे बच्चे में. आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी में कैसे डिफर कर सकते हैं टॉपिक देखने से? आपको उनमें डिफर नहीं करना, आपको क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग पे जाना है, आप किसके अंदर ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, गो फॉर दैट. मैम हाउ सम पीपल पास
एंड इनकम्प्लीट ऐसे नहीं, इनकम्प्लीट ऐसे ये कोई मिरेकल होगा, इनकम्प्लीट ऐसे यूजुअली पास नहीं होता, 90% केसेस में इनकम्प्लीट ऐसे पास नहीं हो सकता, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. Any other question? Okay, Onaiza says how to understand literary statements. Unfolding of the statement की practice करनी चाहिए. जैसे अभी मैंने आपको ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी वाला बताया, इसकी जब हम ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स के साथ अनफोल्डिंग कर रहे थे, हर स्टूडेंट ने डिफरेंट कर दिया, मतलब इतने वेरिड जो आइडिया से मैच भी नहीं कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई थी बात आई कहाँ से है. स्टेटमेंट में दो ही चीजें थी, इकोनॉमिस्ट कहते हैं स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, और पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट एंटीथीसिस पे हैं. वो स्कार्सिटी को नहीं मानते, स्लोगन्स रेज करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक ड्रीम वर्ल्ड दिखा देते हैं, एक फेरी लैंड दिखाते हैं, सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे. उसको लोगों ने कैसे कैसे उसकी टांगे तोड़ी, मैं खुद भी हैरान थी कि ये कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा. अंडरस्टैंडिंग के लिए अनफोल्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. मैम आउटलाइन की लेंथ 3 पेजेस तक अगर हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं क्वालिटी लिखी हो. मैम कौन सी कैटेगरी टाइप के ऐसे प्रेफरेबल हैं? आई प्रेफर लिटरेरी इफ आर्गुमेंटेटिव आर नॉट सो सजेस्टेड. लिटरेरी करें, एक्सपोजिटरी करें, अ ब्लेंड ऑफ राइटिंग स्टाइल्स करें. आर्गुमेंटेटिव मना नहीं है, आपकी कमांड है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका वेटेज पता हो कि आपने थीसिस और एंटीथीसिस को कितना वेटेज देना है. आइडियल लेंथ आउटलाइन की क्या हो सकती है? 2 पेजेस, 2 साइड्स ऑफ अ पेज. एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या डिफरेंस है? एक्सपोजिटरी के अंदर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, आर्गुमेंटेटिव के अंदर आप प्लस माइनस डिस्कस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स. मैम टीचर्स कहते हैं कि आर्गुमेंटेटिव को आर्ग्यू नहीं लिखना, एक्सपोजिटरी लिखें. फ्रॉम फॉर्म में लिखेंगे तो फेलियर होगा. आर्गुमेंटेशन वहां होती है जहां पे आपने थीसिस स्टेटमेंट में दोनों तरफे बताए हो, ऑल्दो और येट वाले जो थीसिस स्टेटमेंट्स होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे बनाते हैं. तो अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो करें, वरना ये मत करें. अपने साथ यहाँ पे अपनी किस्मत नहीं आजमानी. So let it go. How to develop clarity in writing? Evaluation is the key to it. Practice makes the man perfect. Effective practice is needed. How to research? ChatGPT is one of the sources. Get the information about that. मैम लोग बोलते हैं जब तक कोई सॉरी अगेन नीचे को मैसेज आया था तो मिस हो गया. एविड रीडर नहीं है, बहुत से बुक्स नहीं पढ़ी हैं, ऐसे पास नहीं कर सकते. दिस इज अ फैक्ट. आपके पास नॉलेज होना चाहिए. अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर. मैम आपकी क्लासेस के टाइमिंग क्या है? 4 PM एवेल्युएशन है, 5 ऑनवर्ड्स मेरे लेक्चर्स हैं, 5 6 7 वाले क्लासेस मेरे लेक्चर सेशंस हैं. हाउ टू टेकल ऐसे प्रिपरेशन साइड बाय साइड विद एवरी सब्जेक्ट? ऐसे इंग्लिश इज एन ऑनगोइंग थिंग. यू कैन नॉट पुट इट डिसाइड कि हम बाकियों के साथ इंग्लिश तो डेली करना ही करना है. ये उसी तरह जैसे मैथ्स हम स्कूल में कहते होते थे कि मैथ्स इज ऑल प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट कमांड ऑन इट. प्लीज मैम, हाउ टू अटेम्प्ट एन एसे on which we have no facts and figures or no case study? फिर आपका approach towards the essay should be different. दुनिया से अलग सोचते हो आप तो हो सकता है. मैम क्या इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में ट्रांजिशनल पैराग्राफ देने चाहिए? दे सकते हैं, बिल्कुल. दे क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ, सपोर्टिंग पैराग्राफ, कनेक्टिंग पैराग्राफ दे सकते हैं. और चलें उस्मान, आई गेस देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस. जी मैम, आई थिंक देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस. बाकी आपकी जो मैं डिटेल्स हैं इनके साथ में शेयर भी करता रहता हूँ ग्रुप में. मैं दोबारा आपका नंबर शेयर कर दूँ तो काफ़ी मैसेजेस आपको दोबारा आएंगे. बट प्लीज़ आप मैसेजेस सिर्फ मैम को अपने जो डिटेल्स हैं मैम के ऐसे के सेशन की वो मैं आपसे पहले ही शेयर कर दूंगा. तो जिसका फाइनल मूड होगा सिर्फ वही मैडम को टेक्स्ट करे. अदरवाइज बिला वजह जो है वो तंग ना किया जाए इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो मैम थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन एंड आई एम ऑनर्ड कि आपने दोबारा टाइम निकाला मेरे लिए. इंशाल्लाह आपको दोबारा मैं एक दफ़ा इनवाइट करूँगा बाकी एक इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखने के लिए. तो मैं पहले इनके साथ कुछ एक मॉक एक्सरसाइज भी करूँगा इंट्रोडक्शन लिखने की. कुछ ऐसे जनरल स्टूडेंट्स हैं कि दे आर आस्किंग मी कि कुछ इनके सामने लाइव लिख के दिखा दिया जाए. तो लाइव वाला तो एक दो दफ़ा इनके साथ मैंने पहले किया था. आई विल सी कि अगर मेरी वो राइटिंग पहले जैसी है तो मैं दोबारा लिखूं. अदरवाइज ये सारे नहीं नहीं, आई आपके एम श्योर अच्छी होगी. हाँ नहीं नहीं मैम, उस्मान अब साहब, इन लोगों का यही अब मुझे जो फील ऐसा हुआ हो गया है. ना, इन्होंने अभी रिसर्च नहीं किया हुआ. जैसे अभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनका डेमोक्रेसी से रेलेवेंट टॉपिक है. इफ आई कैन जस्ट टेक 1 more minute ऑफ योर्स और मैं इनको यस यस दिखाऊं कि प्लीज. रिसर्च ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स
अभी सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी रिसर्च भेजते जा रहे हैं, हम उसमें से फिर इकट्ठे कलेक्टिवली स्क्रूटिनी करेंगे कि व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट शुड बी ओमिटेड। लाइक ये एक स्टूडेंट का मैंने अभी खोला डॉक्यूमेंट, जो हमारी अभी कल 7 बजे क्लास है, डेमोक्रेसी का टॉपिक है, और इसके अंदर देखें मैम की फीचर्स, यहाँ जी से स्क्रीनशॉट्स भी ऐड की। सॉरी स्मान। जी जी, आई कैन सी दैट स्क्रीन शेयर। तो सिमिलरली कई जगहों पर उसने अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनशॉट उसका भी ऐड किया हुआ है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई, और इसके अंदर ये एक्चुअली एक रीजन है कि गुड पीपल मेक गुड डेमोक्रेसीज, ये उसकी सपोर्ट में उसने किया हुआ कि वोटर्स का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। अब जिस स्टूडेंट इन डेमोक्रेसी को इस लेंस से किया हुआ है प्रिपेयर कि गुड पीपल आर नीडेड फॉर गुड डेमोक्रेसीज, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल है। और उन पीपल के अंदर वो 4 कैटेगरीज कर रहा है कि वो पीपल कौन कौन है, वोटर्स, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट, और आगे फर्दर उसकी कोटेशंस हैं, डेटा है एंड ऑल दैट। तो ये एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल है कि आपने अगर रिसर्च की होती है तो आपकी राइटिंग में ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस आ जाता है। इनके क्वेश्चन से मुझे ऐसा फील हुआ, आई जस्ट गॉट अ वाइब के रिसर्च की भी कमी है, दे नीड टू वर्क अ लॉट अपॉन द कंटेंट नॉलेज, रिसर्च बेस्ड नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज इनके पास टॉपिक का होना जरूरी है। मैम बुक रीडिंग के बारे में लास्ट आप बताइएगा कुछ। इस दफ़ा मैंने भी देखे हैं कि अब इस तरह मार्केट में शुरू हो गया हुआ है कि स्टूडेंट्स को ना वो आइडियाज़ के ऊपर लेक्चर देते हैं। तो क्या आप ये रिकमेंड करती हैं कि जी बजाय इसके कि खुद बुक पढ़ें, जस्ट गो समवेयर एंड हैव अ सेशन और उसमें डिफरेंट आइडियाज़ स्टडी करें? और डेफिनेटली इट वुड हेल्प, ऐसे सेशंस हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये सेशन इनको हेल्प करेंगे। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन एंड इनकी कोई वेलकम। भी क्वेरीज होंगी तो आई विल लेट यू नो। आपका जो कांटेक्ट है अगेन आई विल शेयर विद देम, और आप दोबारा मुझे सेशन की डिटेल शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं इनके साथ दोबारा शेयर कर दूँ। थैंक यू। चलिए ठीक है, I'll send that to you. Okay जी, thank you so much, take care. अल्लाह हाफिज़। जी एवरीवन, आप लोगों ने सुन लिया मैम को एंड मैंने इन्हीं से तैयारी की थी। लेट मी शेयर माय जर्नी विद यू बिफोर वी कॉल इट अ डे। अभी मेरे पाकिस्तान अफेयर्स की भी क्लास है 9:15 पे, और मैंने उसमें भी दोबारा आना है। बट जस्ट क्विकली समिंग इट अप, उसमें मैं आप लोगों के साथ अगर कुछ अपना इंफॉर्मेशन, अपनी जो एक मीगर सा नॉलेज है वो शेयर कर दूं, और उसकी बेस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस तरह तैयारी करता था, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। क्योंकि मेरा पर्पस आप लोगों को सिंपल ये बताने का है कि ऐसे जो है वो पास किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे जो है वो पास नहीं होता, इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो जादू वगैरह करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट, वी कैन इजीली क्वालिफाई ऐसे। अब उसमें अगर मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ बताऊं, क्योंकि आज ऐसे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर उसके बाद एंड पे आप इसमें से डिड्यूस कीजिएगा कि कैसे इसको हम पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट की, ठीक है, मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं तो आई डिड बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इफ यू कंपेयर बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस डिग्री में आई डिड नॉट हैव गुड इंग्लिश कमांड, ठीक है ना, मेरी कोई इतनी रीडिंग होती थी इंग्लिश की यूनिवर्सिटी टाइम में। I was good in managing things. I was a active member of different societies, but not good in reading और literature। मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी टाइम में बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड एट दैट टाइम मेरा जो था वो फोकस भी नहीं था सीएसएस पे, ठीक है। आई यूज टू मोक माई लाइक स्कोल्ड, इवन स्कोल्ड माई फ्रेंड्स जो कि ये तैयारी करते थे, और मैं उनको कहता था कि यू आर वेस्टिंग पब्लिक मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू शुड गो फॉर योर प्रोफेशन एंड यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, और ये सारा कुछ मेरा एक आइडियोलॉजी थी। बट कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए और मैंने जो है वो डिसाइड किया एट द एंड कि मैं खुद जो है उसको अपीयर करूंगा, ठीक है। आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन, जो एक परफेक्ट मतलब जो एक स्ट्रीमलाइन प्रेपरेशन थी, वो मैंने जून आई थिंक 2017 में स्टार्ट की थी। क्योंकि इस वक्त इससे पहले जो मंथ थे अप्रैल के और मई के, I was preparing for some interviews or in MNCs, multinational companies. I was quite close कि मुझे जो है वो पॉइंट में मिल जाती, और अगर मिल जाती तो मैं सीएसएस की तैयारी ना करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आई कुड नॉट गेट गुड जॉब्स, और अच्छी जो एमएनसी जो एक मेरी ड्रीम जॉब थी वो मुझे नहीं मिली, ठीक है। देन आई शिफ्टेड माय फोकस के जी, मैं जो है दोबारा स्टार्ट करता हूँ, इसकी तरफ आता हूँ सीएसएस की तरफ। तो स्टार्टेड माय जर्नी इन जून 2017।
फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड शेयर किया। अब जब मैंने जून में स्टार्ट की तो आई थॉट कि जी मैं सबसे पहले इंग्लिश पे काम करूंगा। आप सब भी यही चाहते हैं कि इंग्लिश पे सबसे पहले आप काम शुरू करें। आप बाकी सेशंस भी लेते रहते हैं। अब जब मैंने इंग्लिश पे काम शुरू किया तो आई गॉट द नंबर ऑफ मैम फिजा। अब उनके साथ इस तरह मेरी इंटरेक्शन हुई कि आई यूज टू गो टू कायदे आजम लाइब्रेरी, और कायदे आजम लाइब्रेरी में मैम होती थी, वहाँ पे रीड कर रही होती थी। तो एक दफा बस मैंने मैम से चेकिंग करवाई तो मैम ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स मेरी आइडेंटिफाई की। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैंने अब सिर्फ जो है वो मैम से ही ऐसे पढ़ना है। तो मैम के पास मैं जाता था, आई यूज टू गो डेली और अपना काम चेक करवाता था। मैम ने जो मेरा काम स्टार्ट किया था, शुरू करवाया था, वो मैंने ग्रामर से शुरू किया था। अब ग्रामर ऐसी नहीं है कि मुझे ग्रामर के जो है वो सेंटेंसेस नहीं पता थे, इसके बेसिक रूल्स नहीं पता थे, मुझे सब पता था। लेकिन क्या चीज नहीं पता थी, वो मिस्टेक्स। अब इसमें क्या करती थी मैडम, करेक्शन एक्सरसाइजेस करवाती थी। सेंटेंस देती थी और उसको कहती थी कि इसको अब करेक्ट करके आए। तो ये तकरीबन एक मंथ जो है वो हमारी प्रैक्टिस चलती रही, ऐसे का मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद सेकंड में मैम ने जो है वो एक टॉपिक देती थी, फॉर एग्जांपल कि जी करप्शन है, जाएं जी ये करप्शन ब्रॉडर टॉपिक दे दिया, इस पे आप जाके सर्च करें। एंड आई यूज टू डू दिस रिसर्च, जिस तरह मैडम ने मेंशन किया। पूरा पूरा दिन मैं इस पे पढ़ता रहता था, अपने नोट्स बनाता था। और इसके अलावा जो फोकस था मेरा इतने सब्जेक्ट्स पे नहीं था, तो मैं मोस्टली इंग्लिश पे काम कर रहा होता था, इसको कंपाइल करता था, फिर आउटलाइन बनाता था। ये जो डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये डाटा ऐसे नहीं बन जाता रातों रात, इसके लिए काफी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड थी, जो मैंने की, इसलिए मैंने आप लोगों को डाटा भी शेयर कर दिया। इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स मैम देती रही एक दो मंथ्स, तकरीबन ये नेक्स्ट 2 मंथ्स ये जो है वो प्रैक्टिस जारी रही। फिर उसके बाद जब तकरीबन अक्टूबर नवंबर आ गया, तो उसमें जो है वो मैम ने फिर मुझे रैंडम टॉपिक देना शुरू कर दिया। अब रैंडम टॉपिक जो था वो बड़ा डिफिकल्ट होता था मेरे लिए, और इसमें रैंडम टॉपिक कौन से थे, लिटरेरी टॉपिक्स थे। लिटरेरी टॉपिक्स मैडम दे देती थी कि जी फॉर एग्जांपल इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, और इस तरह के चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, अजीबो गरीब किस्म के, जिस पे मुझे ना इन्फॉर्मेशन होती थी, ना मेरा इंटरेस्ट होता था। बट आई वॉज फोर्स्ड कि मैं इनके ऊपर जो है वो क्या करूंगा, इनके ऊपर जो है वो मैं आउटलाइन बनाऊं। लेट मी जस्ट अटेंड अ कॉल, मैं आपको। अच्छा, आई गोट अ कॉल। तो उसके बाद मैंने लिटरेरी टॉपिक स्टार्ट की, और इसी तरह रैंडम टॉपिक, आई वाज फोर्स्ड टू डू दीज थिंग्स। मतलब मुझे मैम ने करवाया कि आप ये इसके ऊपर आउटलाइन बना के लाएं, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिख के लाएं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा जो एक पीरियड था ऐसे के ऊपर वो खत्म होता गया, ठीक है। और फिर एंड पे मैम ने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई कि मैं मैम के पास आता था, और बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ चुके थे, ठीक है। तो मैं होता था, एक और दो स्टूडेंट होते थे, तो एंड तक हम जाते रहते थे कंटिन्यूसली वैल्यूएशन करवाने। तो जब मैं जाता था तो मैम एक हमें रैंडम टॉपिक देती थी, और मैम सिर्फ 10 मिनट्स की स्टॉप वॉच चला के हमें टॉपिक्स दे के चली जाती थी कि जी आप इस पे जो है ना आउटलाइन बनाएं और इस पे इंट्रोडक्शन लिखें। तो नियरली 20 मिनट्स होते थे। अब ये डेली जब मैडम ने अपने सर पे ये चीजें करवाई तो इससे काफी ज्यादा मुझे फायदा हुआ। और फायदा ये हुआ कि जब मैं एग्जाम में बैठा जाके पेपर के लिए, तो मेरे लिए ना तो एक तो टॉपिक सेलेक्ट करना डिफिकल्ट था, और ना ही उस पे आउटलाइन बनाना डिफिकल्ट था, क्योंकि एट दैट टाइम आई मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ आउटलाइंस, ठीक है। उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो मेरी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो चुकी थी, और मेरे लिए आउटलाइन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, और ना ही इंट्रोडक्शन लिखना मुश्किल था। और डिफरेंट पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स जो है वो मैंने स्टडी कर ली थी।
एक मैंने नोवेल स्टार्ट किया था चार्लेट ब्रोंटे का, जो है वो जेन आयर। वो एक पैराग्राफ में 10 दफा पढ़ता था और उसमें से रीड करता था कि उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, उसको मैं कॉपी करता था। तो ये चीजें जब मैंने पेपर में जाके, आई रिमेम्बर के 2018 का, आप लोग कहेंगे कि जी ये इसमें तो ऐसे बहुत आसान आए थे, तो ये भी बहुत चैलेंजिंग बन जाता है कि जब ऐसे आसान आए ना, तो आपने उन आसान ऐसे में से पास करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वही ऐसे आपको पता होगा कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने भी, एस्पायरेंट्स ने भी तैयार किए होंगे, रेडीमेड मटेरियल उस पर बना हुआ है, और उस पर आपने पास होना है। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ऐसे पे तो पास होना आसान है कि चलें आपको प्रैक्टिस है, आपने कर लिया। आसान ऐसे पे पास होना मुश्किल है। अगर मैं आपको कहूँ कि करप्शन के ऊपर मुझे आउटलाइन बना के दें, इसके ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स लिखना, इनोवेटिवली लिखना, ये मुश्किल होता है। बजाय इसके कि आपको एक टफ सा टॉपिक दे दूं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी होगी आप टफ वाले पे लिखेंगे, जिसकी नहीं होगी नहीं लिखेगा। आसान का ये होता है कि जिसकी कैपेसिटी नहीं भी होती वो भी लिख लेता है, ठीक है। तो एफपीएससी ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आसान कभी मुश्किल। 2010 में इतने आसान टॉपिक आए कि मैं सोच में पड़ गया कि जो मैंने कौन सा टॉपिक करना है। फाइनली आई डिसाइडेड ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा मेरे लिए अच्छा था, इन्वायरमेंट साइंसेज भी थी मेरी। और लेकिन उस पर मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी, उस पर मैंने एक मिक्सचर यूज किया डिफरेंट पैराग्राफ लिखने का, स्टाइल्स का। और आई गॉट 51 मार्क्स, ठीक है। उससे पहले मैंने पीएमएस में भी ऐसे पास किया, उसके बाद सीएसएस 2020 में भी पास किया, पीएमएस 2020 में भी पास किया, एफआईए में भी पास किया, जितने भी ऐसे के आए हैं एग्जाम मैंने सब में पास किया। तो इसका मतलब था कि कुछ प्रैक्टिस की है तो पास हुआ है ना। अब आप भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोई मैजिक नहीं है, या मुझे जो है वो स्पेशल नजूल नहीं होता लिखते हुए कि जी ये मैंने लिखना है और मैं पास हो जाऊंगा। आप भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो आप में अगर आ जाएगा तो आप ये कर लेंगे। अब इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चन जो है वो मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको दूंगा, जिसमें डिफरेंट पैराग्राफिंग टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, आर्गुमेंटेटिव कैसे लिखना है, ठीक है, और जो नरेटिव है वो कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप पेपर में एटलीस्ट आके कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकता क्योंकि आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग। और अभी मैं सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास लूंगा, और फिर उसके बाद ऐसे कि हम दोबारा किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो आई होप मैडम की क्लास और मेरी कुछ बातों से आपको असर हुआ होगा, और आपको डायरेक्शन सेट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। तो अगेन बेस्ट विशेस, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। पास होना ना होना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, अपियर होना है, तो 100% आप उसमें एफर्ट से करें। और उसमें आपको ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि जी अगर 200 बच्चे पास हैं तो क्या पता मेरा ना हो। अगर 200 भी पास हैं तो आपने कहना है कि आई वुड बी वन ऑफ देम। अगर सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट पास होता है तो यू वुड बी ओनली वन ऑफ देम। तो दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस जो आपको आना चाहिए। पर अगर ये चीज़ें आप डेवलप कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो है वो इसमें रह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड देन अगेन इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। थैंक यू, हाफिज।